Assalamualaikum students. It is science subject class 6 and the lecture number is 13. Unit number is 3 and the page number that we are going to read are 27, 28 and 29. In the previous lecture we read that all living things need food, and in plants there are two main processes that carry on their lives, that are photosynthesis and respiration. Then we read about internal structure of leaf. The leaf consists of three main parts, that are epidermis, mesophyll and vascular bundle. We read that epidermis is of two types, upper epidermis and lower epidermis. Epidermis covers the leaf. The second one was mesophyll. Mesophyll contains chloroplast and hence have the activity of preparing food by trapping the sunlight. Chloroplast has a green pigment that is called chlorophyll. This is the actual part that traps the energy, traps the sunlight. Third main part is the vascular bundle. Vascular bundle consists of two main tissues, that are the xylem and phloem. Xylem is related to the transport of water and phloem is related to the transport of food. Then we read two do you know, first interesting fact and then do you know. Interesting fact was that the green color of leaf is due to presence of chlorophyll, as epidermis is transparent, and then the mesophyll have chloroplast and chloroplast has chlorophyll, due to which leaf appears green. The do you know consists of the fact that stomata absorb water and swell and then it opens, and when it release water it will release water and become close. So opening of stomata usually takes place during daytime and closing of stomata takes place during night time. Today we are going to discuss photosynthesis in detail. Plants make their food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. सबसे पहली बात कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए. कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए. The process of making food by using carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. वो प्रोसेस जिसमें हमें क्या क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड द सनलाइट, और फिर उससे फूड बने, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. Plants also evolve oxygen during photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स के लिए जो मेन चीज़ है वो फूड प्रिपेयर होना है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ बनती है, वो है ऑक्सीजन, जो वो रिलीज़ कर देते हैं, एयर में इवॉल्व कर देते हैं. प्लांट्स को ऑक्सीजन बनाना उनका मेन पर्पस नहीं है, उनका मेन पर्पस है फूड प्रिपेयर करना. Do you remember that all organisms use oxygen during respiration? क्या आपको याद है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए. हम ब्रीदिंग करते हैं, हम किस लिए ब्रीदिंग करते हैं कि हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है. Here is the equation showing the photosynthesis process. आप देख सकते हैं कि एक रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और वाटर H2O
रिएक्ट कर रहे हैं। दो चीज़ें हैं जो रिएक्शन में हिस्सा ले रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किसकी प्रेजेंस में क्या क्या रिक्वायर्ड है? रिक्वायरमेंट जो होती है वो एरो के ऊपर लिखी जाती है। जैसे ये दो चीज़ें, ये रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्टली हिस्सा नहीं ले रही, ज़रूरी हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या क्या चाहिए होता है? सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल चाहिए। ये दोनों चीज़ें इनडायरेक्टली रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं। जो चेंजेस हैं, कंपाउंड्स में चेंजेस हैं, वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन दोनों ने रिएक्शन करना है और क्या बना देना है? ग्लूकोज बनाना है और ऑक्सीजन बनानी है। तो रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? क्लोरोफिल होना चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए। और प्रोडक्ट्स क्या हैं? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। मेन जो प्लांट्स का जो मेन चीज़ है वो है ग्लूकोज प्रिपेयर करना। ग्लूकोज इज़ फूड। और साथ में क्या बनता है? ऑक्सीजन, जिसको वो इवॉल्व कर देंगे। Here is the diagram showing all the requirements. आप देख सकते हैं ये वाटर कहाँ से लेंगे? वाटर आप इसने रूट के ज़रिए सॉइल से अब्जॉर्ब करना है, फिर जाइलम क्या करेगा? लीफ तक ट्रांसफ़र करेगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इसने एयर से लेनी है। फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होगी, जब सनलाइट होगी तो सनलाइट दिखाई है, सन दिखाया है, उससे सनलाइट आ रही है। इसके बाद जो ऑक्सीजन बन रही है उसका एरो आउटवर्ड बनाया है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो एरो है वो इनवर्ड है, यानी लीफ की तरफ है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रही है और ऑक्सीजन एग्जिट कर रही है। द वर्ड फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का वर्ड कहाँ से आया है? द वर्ड फोटोसिंथेसिस इज अ कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। दो ग्रीक वर्ड्स मिलकर एक वर्ड बना रहे हैं जिसका कोई मीनिंग होगा। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है टू मेक। तो फोटोसिंथेसिस इज़ टू मेक विद द हेल्प ऑफ लाइट, यानी फूड प्रिपेयर करना किसकी मदद से? लाइट की मदद से। इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस क्यों ज़रूरी है? हमारे लिए फोटोसिंथेसिस भी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? फोटोसिंथेसिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द वर्ल्ड। दुनिया में बहुत से रिएक्शन हैं जो होना बहुत ज़रूरी है। बॉडी में रिएक्शन बहुत सारे होते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, और फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होने वाले रिएक्शन में से एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। दुनिया में जितने रिएक्शंस होते हैं उसमें बहुत से रिएक्शन इम्पोर्टेंट हैं एंड फोटोसिंथेसिस इज़ वन ऑफ देम। फोटोसिंथेसिस भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन में से एक है। इफ़ फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो क्या होगा? नियरली ऑल लिविंग थिंग्स डाई। फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, प्लांट को फूड नहीं मिलेगी, वो अपने लिए ही फूड प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे और मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे। जो एनिमल्स हैं, हीटरोट्रॉफ्स हैं, वो भी प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं, तो वो भी प्लांट ही नहीं होंगे तो वो भी एट द एंड डेथ हो जाएगी उनकी। तो हर जो चीज़ है वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड कर रही है। ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में दो चीज़ें बनती हैं, दो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, दो चीज़ें प्रोडक्ट्स हैं, दैट आर glucose and oxygen. All living things use glucose and oxygen in respiration to produce energy. जो फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ यूज़ होनी है? वो रेस्पायरेशन में यूज़ होंगी, और रेस्पायरेशन के ड्यूरिंग ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए होंगे। किस लिए? टू प्रोड्यूस एनर्जी। हमें
अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ कैरी ऑन करने के लिए हमारे बॉडी में बहुत से ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें एनर्जी चाहिए होती है। तो वो एनर्जी चाहिए है रेस्पायरेशन के थ्रू आएगी। रेस्पायरेशन होने के लिए दो जो चीज़ें हैं वो होना ज़रूरी है, वो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। दिस एनर्जी इज़ यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटी ऑफ लाइफ। इस एनर्जी को यूज़ करके लाइफ की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाएंगी। इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पे कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं? दैट इज़ लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल आर नेसेसरी फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होनी है, नहीं होनी, स्लो होनी है, स्पीड से होनी है। लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल इस चीज़ पर जो है इफ़ेक्ट रखते हैं। इफ़ एनी ऑफ दीज फैक्टर्स फॉल टू द लो लेवल, इनमें से कोई सा भी एक फैक्टर कम हो गया है, उसका लेवल लो हो गया है, तो फोटोसिंथेसिस या तो स्लो हो जाएगी या रुक जाएगी। अब हम वन बाय वन हर फैक्टर को देख लेते हैं। लाइट है, plants trap sunlight to make food by photosynthesis. Photosynthesis increases as light intensity increases. तो इनका आपस में डायरेक्ट लिंक है, एक को बढ़ाओ दूसरा बढ़ जाएगा, यानी लाइट ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा। आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ लाइट, आपको पता है लाइट के 7 कलर्स होते हैं, उनमें से जो क्लोरोफिल है ब्लू, ऑरेंज और रेड, 3 को एब्जॉर्ब करता है, बाकी से उसका कोई लिंक नहीं है, बाकी को वो रिफ्लेक्ट कर देगा। तो 3 कलर कौन कौन से हैं? ब्लू, ऑरेंज, रेड। कार्बन डाइऑक्साइड सेकेंड फैक्टर है। कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम एयर इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्टेंट हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उनमें से एक है, प्लांट ने इसको एयर से लेना है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का लेवल और रेट इंक्रीज होता जाएगा। द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज़ अबाउट 0.03 to 0.04%। कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मौजूद है? 0.03 से 0.04। टेम्परेचर है, द हायर द टेम्परेचर द फास्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, लेकिन टेम्परेचर की हर चीज़ के लिए एक रेंज होती है, ना उससे कम उसके लिए अच्छा होता है ना उससे ज़्यादा। कम भी बियरेबल नहीं होता और हायर भी। तो इस प्लांट के लिए जो रेंज है जिस पे वो मैक्सिमम काम करता है, अच्छा काम करता है, डैट इज़ फ्रॉम 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये रेंज है जिसमें प्लांट्स मैक्सिमम काम करते हैं। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सी एंड above 40 डिग्री सेंटीग्रेड आर नॉट सुटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। ये जो टेम्परेचर हैं ये फिर अनबियरेबल रेंज पे चले जाते हैं। नेक्स्ट इज़ वाटर। वाटर इज़ वन ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट इज़ रिक्वायर्ड इन लिटल अमाउंट। ये वैसे ही थोड़ी सी अमाउंट में चाहिए, तो चाहे आप इसका लेवल बहुत बढ़ा लें तो इसका एज सच फोटोसिंथेसिस पे इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये चाहिए ही स्मॉल अमाउंट में। तो आप जितनी मर्ज़ी अमाउंट एक्स्ट्रा आप दे लें तो रिएक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कम होती है, रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होना जो है वो स्लो डाउन ज़रूर कर सकता है, लेकिन बढ़ाना एज सच इफ़ेक्ट नहीं रखता। नेक्स्ट इज़ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन मटेरियल इन प्लांट्स। इसने क्या करना है? दैट ट्रैप सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। इसने सनलाइट को ट्रैप करना है। इट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। ये लीव्स को ग्रीन कर देगा because it is green in color. Without chlorophyll the photosynthesis is impossible. जब क्लोरोफिल नहीं होगा, सनलाइट ट्रैप ही नहीं होगी, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। इंटरेस्टिंग फैक्ट, प्लांट्स इन द वर्ल्ड आर समटाइम्स कॉल्ड द लंग्स ऑफ द नेचर।
हमारे लंग्स क्या करते हैं? हमारे लंग्स ने क्या करना है कि हमारी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है और जो है ऑक्सीजन उसको लेकर आना है। तो प्लांट्स भी क्या कर रहे हैं? प्लांट्स जो हैं नेचर में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे हैं और नेचर के अंदर ऑक्सीजन लेकर आ रहे हैं। तो हम इनको लंग्स ऑफ द नेचर कह सकते हैं। राइट फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 2, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने नोटबुक पे लिख लेना है। विच फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस? Following factors are necessary for photosynthesis. First one is light. Plants require light to prepare their food. By photosynthesis, rate of photosynthesis increases as light intensity increases. Second one is carbon dioxide. Carbon dioxide which plants absorb from air is essential for photosynthesis. Rate of respiration increases with increase in carbon dioxide level. टेम्परेचर है, द हायर द टेम्परेचर द फास्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. टेम्परेचर बिलो 0 and above 40 are not suitable for plants. Water is a raw material of photosynthesis and required in limited amount. Chlorophyll है, chlorophyll is the green material in plants that trap sunlight for photosynthesis. Without chlorophyll, photosynthesis is impossible. So students, ये था आज का काम। आपने रीडिंग को पहले तैयार करना है, रीडिंग को आपने पढ़ लेना है। लेक्चर आप 2-3 मरतबा सुने, रीडिंग करें। रीडिंग करने के बाद जो क्वेश्चन है उसको नोटबुक पे लिख लें और फिर आपने इस क्वेश्चन को याद कर लेना है।